اور بچہ کہہ دیا. یہ بچے تو نہیں ہیں ماشاءاللہ، ان کے دو ماشاءاللہ بیٹے ہیں. اور دیکھیے یہ سوال جو تھا ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ سوال ہوگا. یہ سوال میاں علی اقبال نے کیا. ایک اور بات ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ہوਇਆ ہے. نہیں دل ਦੁਖਿਆ ਹੋਇਆ ہے. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਹਾਨ ਬਣੋ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ہے. ایسی سمجھا رہا ہوں. مجھے ذرا سا بھی یہ رتی برابر بھی اس چیز کا گمان بھی نہیں ہوا کہ میرا نام کیوں نہیں لیا یا میرا نام کسی کو بھی بجا دیتے، مندر کا گھنٹہ سمجھ کے نا بجانا شروع کر دیتے ہیں. اگر اور اس سے بھی سخت کوشچن ہوگا تو میں عمران یاسر جو ہے وہ اچھے وکیل کے ساتھ اب اچھے صحافی بھی بن چکے ہیں. انہوں نے اپنے الفاظ جو ہیں وہ عمران یاسر صاحب کے ان کے منہ میں دیے. یعنی کچھ لوگوں کے نام وہ نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن میں محسن بلال عمران ریاض خان کی ایک پوڈ کاسٹ جو انہوں نے انٹرویو دیا اپنے دوست میاں علی اشفاق کو جو ایڈوکیٹ ہیں، اس انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ انہوں نے ان یوٹیوبرز اور اینکرز اور صحافیوں کے نام لیے جو ان کے لیے کسی پروٹیسٹ میں نظر نہیں آئے، اور ان نوجوانوں کو بالکل نظر انداز کر دیا جو ہر لمحہ ان کے لیے فکر مند رہے اور ان کا مقدمہ بھرپور چاہے عدالتوں میں یا سڑکوں پر لڑتے رہے، احتجاج کرتے رہے، ٹویٹ کرتے رہے، وی لاگز کرتے رہے اور آواز بلند کرتے رہے. تو کچھ دوستوں نے اعتراض کیا، جو اعتراض ان کا جینون بنتا ہے. ہمارے ایک دوست شاکر محمود وان صاحب بھی انہی میں شامل ہیں. یہ اپنی زبان سے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اعتراض تو نہیں کر رہے، تحفظات تو نہیں سامنے لا رہے، لیکن ایک سوال جو اسپیسیفکلی ہوا کہ عمران ریاض خان کیا آپ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا. جب وہ عدالت میں آئے تو بہت زیادہ شاکر محمود اوان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ اس صحافی نے یہ بات کیسے کر دی. تو اس صحافی کا پھر ذکر ہوا اس پوڈ کاسٹ پہ، اور بچہ کہہ دیا. یہ بچے تو نہیں ہیں ماشاءاللہ، ان کے دو ماشاءاللہ بیٹے ہیں اور ہمارے قریب ہیں، میرے ہم عمر ہیں. اگر میں 40 کا ہونے والا ہوں تو یہ بھی 40 کے ظاہر ہے. جب دورانی صاحب کے تحفظات ٹھیک ہیں یا نہیں؟ وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب وہ جو ہوا ہونے والے ہوں گے تو 40 ہے بھائی، 28 یہ جو اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ ٹھیک اعتراض اٹھا رہے ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ محسن صاحب دیکھیں، سب سے اچھی اور بڑی خبر یہ تھی کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ پردہ اسکرین پر آئے. اور یہ جو اعتراض اٹھانے والی بات ہے، دیکھیں یہ مقدمہ جو ہے وہ میں نے عمران ریاض کا نہیں لڑا تھا. یہ مقدمہ میں نے اپنا لڑا تھا. یہ مقدمہ میں نے آزادی صحافت کے لیے لڑا. یہ مقدمہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ آپ یا کوئی اور ہوگا تو اس کا مقدمہ بھی اسی طرح لڑوں گا. یہ جب بھی میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، آپ لاجک میں آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کل کو آپ چلیں محسن صاحب وہ نام لے لیتے تو مجھے کون سا وہ نشان عطر مل جانا تھا. یار یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وقت یہ طے کرتا ہے کہ کون کس سمت پر کھڑا ہے. اور میری جو صحافتی ذمہ داری تھی، اور اگر جو میں پروٹیسٹ پہ شریک ہوا تو وہ صرف اس لیے ہوا کہ ہمارا ایک صحافی، ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک بھائی جو ہے وہ مشکل میں ہے. تو ہم نے اپنا فرض تھا وہ ادا کیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو احتجاج ہوتے رہے، جو کورٹ رپورٹنگ ہوتی رہی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ لگے رہے اور انہوں نے دن رات کام کیا، اور انہوں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم صرف اس لالچ میں کر رہے تھے کہ عمران ریاض باہر آتے ہیں یا ان کی فیملی جو ہے وہ شکریہ ادا کرے، یا ہمارا کسی بھی طرح سے اس طرح کا کوئی مقصد نہیں تھا. یہ میری ذمہ داری تھی. یار میری بات سنیں. ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਕੀ ਲਾਜਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਜਕ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਫਿਰ. ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਆਲਾ ਜ਼ਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੋਇਆ. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਹਾਨ ਬਣੋ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ. پھر تسی وہ تصویریں اپنے تک رکھو، وہ کی ہے؟ میری بات سنیں. ایک جو عمران ریاض کے حوالے سے بات کریں تو صرف پاکستان میں نہیں، اوورسیز پاکستان نہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن سب نے جو ہے وہ آواز اٹھائی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض پاکستان کے وہ واحد صحافی ہیں جن کا احتجاج جو ہے وہ 142 دن تک، جب تک وہ پابند سلاست رہے، وہ احتجاج جاری رہا. یہی تو ہم دیکھیں نا، آپ حقائق نہ مسئلہ کریں. آپ خود صحافی ہیں. وہ 142 دن زندہ جن لوگوں نے رکھا، جن کے انہوں نے نام لیے، ان لوگوں نے زندہ رکھا.
नहीं मोहसिन साहब ये जहाँ चीज़ें- जाने देना ये मुनाफिकत है खुद ही शाकर भाई। ना ना मैं खुल के बात करूंगा। मेरे इन भाई, लोगों ने जिंदा मेरे रखा, दोस्त- वो राय साकब खरल ने जिंदा रखा, सलमान दुरानी ने रखा, शाकर अवान ने रखा, वकास ने रखा, अंस गोंदर ने रखा, इतने नाम है, तवील फहरिस्त है। मैं गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूँ, मुझे पता है। आजम चौधरी साहब ने रखा, उन्हें तो नौकरी से हाथ जो है धोना पड़ गया पीटीवी की। इधर मरियम और बात साहब बिल्कुल आराम आपकी से दुरुस्त एतराज है, उठाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त है कि लाहौर प्रेस क्लब को मैं ये आपको बता दूं कि बड़ी सख्ती से इंस्ट्रक्शन थी कि वो इमरान रियाज के हवाले से जो है वो कोई एहतजाज या कोई इस तरह की चीज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद आजम चौधरी साहब जो हैं वो लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जब हमने एहतजाज किया था, जिसमें इमरान भाई भी आए थे, उन्होंने उसमें शिरकत की। न सिर्फ शिरकत की बल्कि हमने उनसे तकारीर भी करवाई। और उसके बाद हम दरख्वास्त करते रहे आजम चौधरी साहब से, और बार बार दरख्वास्त करते रहे, और वो हमारी दरख्वास्त पर हमारी दरख्वास्त पर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट भी आते रहे। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी की अदालत में वो पेश होते रहे हैं। तो इस पे तो आपने जो बात की कोई दो राय नहीं है। आजम चौधरी साहब जो हैं वो फर्द वाहिद थे पूरी प्रेस क्लब की बॉडी में जो कि एहतजाज में शिरकत करते रहे हैं। लेकिन ये बात ये हक़ाइक़ पर मबनी है। और जहाँ तक आजम चौधरी साहब की आप बात कर रहे हैं, तो इमरान रियाज साहब ने सबसे पहले आजम चौधरी साहब का शुक्रिया अदा किया, उन्हें कॉल की थी, और मैं इस बात का गवाह हूँ। आप और इसे लेकर आते ना प्रेस क्लब। देखिए, जब उनकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है, मैं आपको बता दूं कि जो लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन है, आपको इमरान रियाज यहाँ पे नजर आएंगे और अपना वोट कास्ट करने भी आएंगे। वो तो उनका ज़ाहिर है, मेंबर है तो करना ही है। आप उनके तर्जुमा जो ये बात कर देखिए, जब हम बैठे होते हैं जिस तरह आप हैं, तो आपके साथ जब हमारी गुफ्तगू होती है तो आप बताते हैं कि यार ये चीज़ें जो हैं मैं आगे करने जा रहा हूँ, और ये मुझे बताएं कि मुझे राय दें। तो अच्छा, ये जो उन्होंने नाम लिए, ये आपकी राय इसमें शामिल है? किन लोगों का शुक्रिया अदा करें? देखिए, ये सवाल जो था हमें तो नहीं पता था कि ये सवाल होगा। ये सवाल मियां अली इकबाल ने किया। अच्छा, एक और बात, असल में जो दुरानी साहब ने जो निशानदेही की है ना, वो उन्होंने जब दुरानी साहब के तफज़ा ठीक है या नहीं? वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब वो जो हुआ, दुरानी ये- साहब ਤੁਹਾਡਾ मुकदमा लड़ रहे आप बिल्कुल, के बिल्कुल, शाकर में मून अवान कह रहे हैं, दुरुस्त आपका है। मुकदमा असल बिल्कुल में दुरुस्त है। मियां अली इकबाल साहब जो हैं वो अच्छे वकील के साथ अब अच्छे सहाफ़ी भी बन चुके हैं। उन्होंने अपने अल्फाज जो हैं वो इमरान रियाज साहब के उनके मुंह में दिए, और वहाँ से फिर वो थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि जब आप वीडियो से गौर से देखें तो थोड़ा सा इनबैलेंस हुए हैं। यानी कुछ लोगों के नाम वो नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अहमद अबू बकर आते रहे हैं। सारे हैं। देखें, बहुत से दोस्त हैं। हमारा एक दोस्त है अवैस, जो इस्लामाबाद से यहाँ पर आता था, और हर समाज पर जो है वो आकर जो है वो सारी रिपोर्टिंग करता था। फिर उसके साथ उस्मान लड़का जो है, ये भी इस्लामाबाद से आते थे। दोनों इमरान रियाज साहब के साथ जो है वो दीना, इनके साथ उनकी कुर्बत है। ये दोनों हम तो यहाँ पर लाहौर में बैठ के करते रहे हैं ना, लेकिन इस्लामाबाद से यहाँ पर आना ये बड़ी बात अच्छा, होती है। लास्ट में ये बताएं, ये आदिल राजा, मियां अली इशफाक और इमरान रियाज, ये क्या चल रहा है, कहानी क्या है इसकी? देखिए, मैं तो नहीं कुछ बता सकता। अच्छा। मियां अली इशफाक साहब जो हैं वो इमरान रियाज के वकील हैं, और उनकी पहचान जो है वो इमरान रियाज है। और आदिल राजा साहब जो हैं, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा फॉलो उनकी नहीं करता, पहचान इमरान खान है। उनकी पहचान जो है वो इमरान खान, बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं कि इमरान खान के नाम मियां से ही इशफाक उन्होंने की आप कह रहे हैं पहचान इमरान रियाज खान है, और आदिल राजा की डिजिटल मीडिया पर। अच्छा। वैसे अगर हम कानूनी एक अच्छे तौर पे वकील बात करें तो बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत बड़े बड़े मुकदमा जो हैं उन्होंने लड़े हैं। लेकिन अगर आप डिजिटल या जर्नलिज्म या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो वो उनकी पहचान इमरान रियाज। तो नाम लेने से कोई फर्क नहीं, तो तुमने मेरा नाम क्यों नहीं? देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो नाम से बहुत आगे हैं। आप नाम से बहुत आगे हैं। बहुत आगे हैं। आप आपका बहुत आगे हैं। आपका जो दिल का जो आपका कनेक्शन होता है ना, वो कनेक्शन किसी नाम का मोहताज नहीं होता। तो जिनके साथ आपके जो दोस्त हैं, जिनका आपके दिल के साथ कनेक्शन है, अगर वो ये बात कर रहे हैं तो आपके साथ उनका कनेक्शन है तो बात कर रहे हैं ना, तो वो गलत तो ना हो गई? भाई, मुझे यकीन करें, मैं ये आपको सच्ची कसम खा रहा हूँ, मुझे ज़रा सा भी ये रत्ती बराबर भी इस चीज़ का गुमान भी नहीं हुआ कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया या मेरा नाम लेना चाहिए था। बच्चा मेरा जो काम था, बच्चा जो कहा है मेरा काम, और जो मेरा बच्चा का है, बच्चा का। बिल्कुल जी, हमारे बड़े भाई हैं वो, और वो मोहब्बत करते हैं, शफकत करते हैं। और हमारा जो पहला असूल है सहाफ़त का कि अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, उनका अदब करना है। और उन्होंने मुझे बच्चा कहा और मुझे बड़ी खुशी हुई है, तो उन्होंने मुझे याद रखा हुआ है। बाकी जो क्वेश्चन है जिसके हवाले से तनकीद की गई है, भाई वो क्वेश्चन
अगर और मैं इससे भी भी होता, मैं सख्त भी क्वेश्चन करता। होगा तो मैं इमरान नियाज़ से करूँगा। मेरी दोस्ती, मेरा अच्छा ताल्लुक और वो है। मैं जिन्हों ने उन्होंने ना लेने लास्ट पे ये वाइंड अप करूंगा तारक मतीन साहब कराची बैठे नहीं, तारक मतीन ਇੱਥੇ ਦੇ नहीं। ਜ਼ਮੀਨੀ नहीं, नहीं, तारक हकायक और गल ते सुन लो तारक यार। मतीन जंग और लड़ते गल ते सुन लो, जंग लड़ते ने, गल ते सुन लो। उन्होंने आपकी बजाई थी उस सवाल बात के बाद जो ट्वीट कोई किया बात था। कोई बात मैं ये कहता हूँ कि ये रेटिंग के लिए ना किसी को भी बजा देते, मंदिर का घंटा समझ के ना बजाना शुरू कर देते हैं। हकायक वो थे कि वो उन्होंने वो क्लिप ने देखा कि सबसे पहले इमरान नियाज़ ने किसको बगल कीप किया, किसके साथ सलाम दी, मुसाफा किया। वो एक जी वो जैसा व्हाट्सएप ग्रुप में वो गया, वो कहा जी कि इस सहाफ़ी को तो सहाफ़ती असूल नहीं पता। ये सारे उनको पता है जिनके इमरान नियाज़ ने नाम नहीं है कि आपको मुझे या किसी और XYZ को सहाफ़ती असूलों का कुछ पता नहीं। लेकिन मियां साहब जो वो सवाल था, जब वो सवाल पहले मैंने किया तो लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया। अच्छा, कुछ जो मेरे करीबी दोस्त थे उन्होंने जब मुझसे रब्ता किया, जब मैंने उन्हें बताया, वजाहत दी, तो उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर यानी साकिब खल साहब है, उन्होंने पहले एक वीलॉग किया था, लेकिन जब उन्हें इस सवाल के बारे में पता चला तो फिर उसके बाद उन्होंने अगले वीलॉग में वजाहत भी की। तो ये है बस मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा कि पहले आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, फिर उसके बाद कोई आपसे रब्ता करे तो वो फिर आगे वजाहत दे दे। यानी इधरों भी कमाओ उधरों भी कमाओ, जिस साबित शाकर ने फेक न्यूज़ दी थी उधरों भी कमाया, बेवकूफ़ बना गए, इधरों भी बनाया। शाकर साहब बहुत सारी बातें मानते हैं, हमारे भाई हैं, वो ना कहें तो अलग बात है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।